So, students of NTSC section, especially, and today we are going to start again with the electricity. So, you have seen the recorded lecture of the electricity on the YouTube, but उसके अलावा भी आज मुझे आपके साथ ये वाला पार्ट डील करना. Okay, I got a doubt. Formula for the electric field. Okay, इसके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर बनाने वाला हूँ बेटा जी. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आई एम गोइंग टू टेक अ स्पेशल ऑनलाइन लेक्चर. ठीक है, इस बात की आप टेंशन मत लीजिए. Okay, so let's start with that. And how we are going to deal is that कि I'm going to share my screen. Okay, so अभी आपके सामने मेरा screen आएगा. On that screen, I hope आपको सारी चीजें better way में और समझ में आएंगी. डन है? So here we have a blank screen that I want to share and I want to discuss everything through that screen. Okay, so I hope everyone is getting that screen. Okay, now when we talk about the electricity, please try to understand और सारे points को समझने का कोशिश करना. When we talk about the electricity ना, the one thing that came into our mind and that important thing is charge. The first thing जो हमें समझना पड़ेगा, that point is the charge. So what is the charge? You have to understand, it is the inherent property of body. Inherent means internal. आप इस वर्ड को इंटरनल से भी रिप्लेस कर सकते हैं. The internal property of a body to show electrical character. Okay, so to analyze that electrical character, किसी भी बॉडी के पास इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर होता है, that would be because of this charge. वो चार्ज की वजह से होता है. Okay, we classify this charge in a two category. हम इस चार्ज को दो कैटेगरी में बांटते हैं बेटा जी, इसे अंडरस्टैंड करेंगे. The first is positive charge. Okay, second one is negative charge, and the positive charge whose smallest value is plus 1.6 into 10 power negative 19 coulomb. Okay, one student has asked me about the unit of the charge, तो चलिए वो भी मैं मेंशन कर देता हूं. The SI unit of charge, please, is coulomb. Coulomb was the scientist who firstly discovered the electrical property, जिसने हमें फॉर्मूले दिए थे जो हमें आगे जाके पता चलेंगे. So on the name of the coulomb we define the SI unit of the charge. Okay, coulomb, capital C. And the negative charge has the value, please remember, the smallest negative charge has the value 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. These two are the smallest value of the charges. Smallest value of the charges. इससे छोटा चार्ज का वैल्यू नहीं हो सकता. इस बात को प्लीज आप लोग रिमाइंड रखेंगे अभी के लिए. ठीक है? ओके, व्हेन यू गो इन द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इन दैट पॉइंट उस समय आपको पता चलेगा या इससे भी स्मॉलेस्ट होती हैं, बट अप टू द 10th लेवल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द 12th लेवल वी टेक द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन दिस मैनर. ये छोटी है. पॉजिटिव इससे स्मॉल नहीं हो सकता, नेगेटिव इससे स्मॉल नहीं हो सकता. है ना? ओके, वन मोर थिंग that I want to discuss about that positive or negative character, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं. So for that I want to go into the next slide, और यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं that in physics, मैं आपसे ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुका हूं. In physics, positive or negative, these are the signs used to show direction or behavior. If we want to show the direction, if we want to show the behavior, we use the sign either positive or either negative. हम ये sign use करते हैं. Okay, it does not imply that if anything which has the direction, अगर वो positive है या negative है, तो positive is considered as greater than negative. ऐसा कुछ नहीं होता है, ये totally wrong है. इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ठीक है? तो if you are thinking that we have two charges, we have one charge which is plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, and second charge is minus 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. हमारे पास दो चार्जेस हैं. ओके, इसका मतलब ये नहीं होगा बेटा जी कि that positive charge is greater than the negative charge. Both the charges are equal, but their behavior are opposite. मतलब
इफ पॉजिटिव से दैट आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट समवन, अगर पॉजिटिव कहता है कि मुझे किसी को अट्रैक्ट करना है, तो नेगेटिव कहेगा मैं उसे रिपेल करूंगा, बट उतने ही अमाउंट से। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, दीज चार्जेस हैव सम प्रॉपर्टीज, मैं एक बार क्विकली कर देता हूं। दीज चार्जेस हैव सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्विकली, the like charges, what they do, the like charges repel each other. Second, the unlike charges, they always attract each other. इस बात को ध्यान में रखना। So like charges repel और unlike charges attract. डन है? ओके। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, दैट चार्जेस आर, प्लीज इंपॉर्टेंटली, ये अब सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। चार्जेस आर स्केलर इन नेचर, दे आर स्केलर इन बिहेवियर। Scalar means they are going to obey simple algebraic addition. ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि ये केवल स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड कैसे करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कैसे करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को ओबे करेगा, मतलब सिंपल डायरेक्ट ऐड करना है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे ओबे कंजर्वेटिव इन नेचर। सो थर्ड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज means conservation of charge. Charge can neither be created or nor be destroyed. ठीक है, neither be created nor be destroyed. ना आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, ना आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये हमेशा जितना है उतना ही रहेगा, है ना? गॉट दैट पॉइंट? सो अभी तक तो हमारे पास 3 ही प्रॉपर्टीज हुई हैं। आई एम रिकॉलिंग ऑल द प्रॉपर्टीज। लाइक चार्जेस repel, unlike charges attract each other. Charges are scalar in nature, means they obey the algebraic addition. And the third property is conservation of the charges. Done hai? Okay. Now the most and the fourth important property, जो मुझे डाउट भी मिला था एक स्टूडेंट का, and that property is quantization. Quantization of charge, you have to understand that. So what is the quantization? Quantization word has been made from the simply the meaning from quanta. ये जो वर्ड है ये क्वांटा वर्ड से बना है बेटा। क्वांटा वर्ड मींस सिंगल, इंडिविजुअल, जो भी आप इसे नाम देना चाहें। ओके, सो व्हाट डज क्वांटाइजेशन सेज, दैट इमेजिन दैट वी हैव अ बॉडी, ये हमारे पास बॉडी है, ठीक है। सो इफ दिस बॉडी वांट टू लूज द इलेक्ट्रॉन, अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट कैन लूज आइदर 1 इलेक्ट्रॉन, इट कैन लूज आइदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड मेनी मोर। If it loses the 1 electron, it will become +1. If it loses सर थोड़ा तेज बोलो। क्या हुआ बेटा? सर थोड़ा तेज बोलो। बेटा माइक पे बोल रहा हूं, मैंने आपसे पहले ही पूछा था वॉइस क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इज देयर एनी, फिर मैं फिर से पूछ रहा हूं, वॉइस क्लियर नहीं है? प्लीज आप टेक्स्ट कर दीजिए, वॉइस टोटली क्लियर है। माइक यहाँ पे है बेटा, यहाँ से मैंने बेस्ट प्रॉपर्टीज लगा रखी हैं आपके पास। There is no disturbance of any other or any other concept. So the student, तो बेटा वो फिर वो नेटवर्क इश्यू है, वो बिकॉज ऑफ योर साइड नेटवर्क इश्यू, वॉइस थोड़ा सा कभी चला जाता है, कभी पिक्चर चला जाता है, दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क वन। सो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, आप ओजस्वी आप थोड़ा अपना माइक का आवाज थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, और अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि वॉइस थोड़ा ब्लर हो रहा है, देयर इज नो इश्यू, आई विल शेयर योर दैट रिकॉर्डेड लेक्चर, और मिल जाएगा बेटा जी आपको, ठीक है। चलिए बैक टू द स्क्रीन, अपने पार्ट पे आते हैं और अपने उस स्क्रीन वाले हिस्से को डिस्कस करते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे। सो इफ माय बॉडी लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम 1+। If it loses 2 electron, it become 2+, similarly 3+, 4+. And on the other side, if I have a body on the other side which gains the electron,
वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो क्या कर सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आइदर 2 इलेक्ट्रॉन और आइदर 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। एंड इफ इट गेन, वी ऑल नो दैट जब भी कोई बॉडी चार्जेस को गेन करता है इट बिकम नेगेटिव चार्ज। सो पॉइंट इज दैट कि ये जो लूज और गेन का जो गेम चल रहा है ना, एक बॉडी लूज कर रहा है एक बॉडी गेन कर रहा है, तो क्या कर सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा दूसरे के पास जाएगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन और आइदर 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, ये होगा। इट कांट बी डन दैट आई हैव शेयर्ड 1.5 इलेक्ट्रॉन, प्लीज ये नहीं हो सकता, मैं इस चीज को प्लीज टोटली कट करना चाहूंगा, ये नहीं हो सकता दैट वी कांट शेयर 1.5 इलेक्ट्रॉन विच मीन्स और विच सेज दैट की आई शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ओके और उसके बाद जब हम लोगों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इफ समवन इज सेइंग दैट की ओ सर, ओके जस्ट वेट अ मिनट, देयर आर सम स्टूडेंट जो अब ज्वाइन कर रहे हैं, आई टोटली मेंशन यू ना, मैंने आपको टोटली पहले ही मेंशन कर दिया था कि दैट यू हैव टू बी ऑन द टाइम, यू आर सेंडिंग मी द एनरोलमेंट इज दिस टाइम ना, okay be quick beta. Now back to the part. So the part is that 1.5 electron is being shared. ये बात इसलिए नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 electron is completely shared and another electron is half shared. So this half shared is not possible. So what does quantization says? It says that total charge of body is always integer multiple of basic unit of charge। जो आपका टोटल चार्ज होगा वो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होने वाला है, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके सो इफ वी लुक फॉर द वन बॉडी, अगर हम लोग फर्स्ट बॉडी की तरफ ध्यान देते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट बॉडी जिसने हमारे इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, दैट बॉडी इज बिकमिंग 1 + 2 + 3 +, तो यानी 1 प्लस का मतलब 1 + e चार्ज आ गया, प्लस e का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है, या फिर 2 + e आ गया, या फिर 3 + e आया, या फिर 4 + e आया, and the body which gains that will become -e, -2e, -3e या -4e and so on. So what this e is called? This e is called basic unit of charge. Basic unit of charge. Charge की सबसे basic unit, it means charge का सबसे smallest value बेटा जी। And what is that basic unit? चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो रही है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये क्लियर है? ओके तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भाई किसी भी बॉडी के पास चार्ज, any body has a charge, q is always equal to n times of e, where it can be positive or it can be negative. हाँ पॉजिटिव कब होगा? जब बॉडी लूज करेगा, नेगेटिव कब होगा? जब बॉडी गेन करेगा, बट n का वैल्यू इंटीजर होगा, विच मीन्स कितना? इट वुड बी 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, but it can't be in a decimal manner or a fraction manner. This is the quantization of the charge. ये कहलाता है quantization. ओके अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव देख रहे हो तो अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज आप न्यूमेरिकली Q को डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हो? Q इज इक्वल टू एनी, है ना, अगर आपको ये नहीं मालूम कि बॉडी ने लूज किया है या गेन किया। ओके सो टिल हियर वी डिस्कस अबाउट व्हाट? टिल हियर वी डिस्कस अबाउट दी चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। हमने चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की है। सो anyone having any issue till now? यहां तक अगर कोई इश्यू है प्लीज वो बताइए एक बार। इफ इट इज ओके तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आई कैन प्रोसीड टू द करंट, फिर मैं करंट की तरफ जाना कोशिश करूंगा एंड देन वी प्रोसीड टू द ओम्स लॉ। यहां तक डन है भाई? प्लीज क्विकली रिप्लाई कीजिए बेटा जी।
प्लीज रिप्लाई। ओके डन है, यस सर, चलो ठीक है, ओके है भैया चेतन, यस सर, वेरी गुड बेटा, ओके डन है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ओके। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, डन शाबाश। चलिए, now we are working on the next one and the next term is current. Next term is current, जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। What is the current? The rate of flow of charge, rate of flow of charge in one direction is known as current. यानी आपके चार्जेस किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने चाहिए। योर चार्जेस मस्ट फ्लो इन अ कंडक्टर, but they must flow in a one particular direction, not in a random manner. Okay, so I is numerically equal to Q by T, where Q stands for charge flow, okay, and T stands for the time taken. Okay, the how much charge is flow, इस बॉडी से कितना चार्ज फ्लो हुआ वो डेफिनेटली वही होगा जितना इस बॉडी ने लूज किया होगा, जितना इस बॉडी में मूव कर रहा होगा। सो फॉर न्यूमेरिकली पर्पस वी कैन यूज Q इज इक्वल टू एनी। हम लोग चार्ज को Q इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, एनी ले सकते हैं। तो हमारे पास करंट का न्यू फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट वुड बी NET, वेयर N स्टैंड्स फॉर number of free electron, free, the electron which are moving, which can move from one part to the another part. डन है, ओके। चलिए छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं इसके बारे में, like its SI unit. Okay, so SI unit for the current is ampere. What is the SI unit of the current? Ampere. Okay, or we can also call coulomb per second. Okay, we know the what is the SI unit for charge? It is coulomb. And what is the SI unit for the time? It is second. So we can also write as a coulomb per second. Clear here? Okay. Regarding one more thing that I want to discuss here, and that point is nature. Nature के बारे में मैं आपसे discuss करना चाहूंगा. Regarding the nature, current is, please everyone, current is scalar quantity. This is very much interesting as well as confusion part. ये दोनों का हिस्सा है. Okay, we know that, we all know that current always flow. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ और आगे भी हम लोग बात करेंगे. Current always flow from positive terminal of the battery to the negative terminal. ये सब तो जानते हैं हम लोग कि करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो अब यहां से कंफ्यूजन शुरू होता है। कंफ्यूजन क्या शुरू होता है सर? कंफ्यूजन इज दैट कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो ये तो करंट की क्या हो गई, ये तो करंट का डायरेक्शन हो गया ना सर। सर पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है तो इसका मतलब इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, हाँ, व्हेन वी अप्लाई द फॉर्मूला तो करंट हैज अ मैग्नीट्यूड, सो करंट carries direction as well as current carries magnitude. अब आपका नॉलेज क्या कहता है? What your knowledge says that if any quantity, any physical quantity which has direction as well as magnitude, जिसके पास डायरेक्शन भी है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, we call that quantity as a vector, है ना? और सर आपने अभी मेंशन किया कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहां से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है और थोड़ा सा बदलाव लेके आना पड़ेगा। किसमें बदलाव लेके आना पड़ेगा? आपको अपनी डेफिनेशन में बदलाव लेके आना पड़ेगा। व्हाट इज वेक्टर? ओके, वी डिफाइन वेक्टर एज अ क्वांटिटी। हम सब जानते हैं कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इंक्लूडेड है ना? वेक्टर ये वाली क्वांटिटी होती है। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने अपने पहले क्लास, दैट वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज ओबेज क्या? वेक्टर एडिशन लॉ। क्या ओबे करता है वो वेक्टर के एडिशन लॉ को ओबे करता है। दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका याद है? ए वेक्टर बी वेक्टर,
एंड इफ द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, सिखाया था ना रिजल्टेंट, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Remember, this is how two vectors are added. Then okay, scalar quantity. What is the scalar quantity? The scalar quantity is that quantity which contains magnitude only. Okay, and scalar quantity obeys what it obeys. Okay, that spell has been get wrong. Scalar quantity obeys scalar addition, or you can say algebraic addition. Algebraic addition, simple. If I have a quantity A, if I have a quantity B, so what is the scalar addition? A plus B. Simple storyline, there is no issue in that. Okay, so when we study the current in practically, please everyone listen it very carefully, that जब हमने current को practically पढ़ा, imagine that from here we have 2 ampere, ठीक है, from here we have 3 ampere, clear? Here how much current is being flowing? This is the question, simple question is that. Okay, now scientists in a previous manner, और अभी भी हम इस चीज को करके देख सकते हैं, imagine that the first two wires, the 2 ampere and 3 ampere current carrying wire, they have angle 60 degree, and now on the third wire path we connected ammeter. मैं आपको already ये recorded में बता चुका हूं, but फिर भी बता देता हूं. What is this? This is ammeter. Ammeter, the device which measures the current. Current को जो measure करता है, ठीक है. तो if we want to know how much current is that, यहाँ पे कितना है, तो ammeter always shows 5 ampere. Ammeter ने कितना रीडिंग दिखाया? Ammeter shows us the 5 ampere reading. उसका जो पॉइंटर है वो 5 एम्पियर पे गया. अब यहां हमने देखा सर 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर बोथ आर मेकिंग हाउ मच 60 डिग्री. Next time what we done, next time we make 2 ampere and then we take 3 ampere from here. Okay, done it. Okay, the angle between them is, let's suppose this time is 30 degree, imagine that. And now we are again asking what is the question, what is the answer, and what is the current through that third wire. And beta ji, we again found this current as a 5 ampere. Now this has been contradiction. ये कॉन्ट्राडिक्शन आया ना, देखो दोनों रिजल्ट हमें 5 एम्पियर मिले, इसका मतलब यहां पे भी 2 + 3 हुआ है, यहां पे भी 2 + 3 हुआ है. इट डजंट मैटर हाउ मच एंगल इज बिटवीन देम, है ना. तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में नहीं होना, मैं आपको बैक साइड में एक बार लेके चलता हूं. दैट करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, तो वो उस करंट का एक टर्मिनल का डायरेक्शन है, मतलब एक वायर में डायरेक्शन है. इस बात को समझेंगे. पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन वन वायर. ये वन वायर में डायरेक्शन है, ठीक है. तो मान लीजिए इफ आई से करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, इफ आई से, इट मींस ए इज एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, बी एज अ नेगेटिव टर्मिनल. क्लियर? ओके, तो ये ऐसे काम कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव. इफ वी टेक सेकेंड वायर, अगर हम यहां पे कोई दूसरा वायर लेते हैं which carry some different amount of current, so जिस एंगल को हम वेक्टर में पढ़ते हैं वो एंगल दोनों वायर के बीच में होना चाहिए. तो सीखने वाली बात क्या पता चली, और वो ये कि हमारे करंट के पास स्केलर यानी मैग्नीट्यूड है और गिवन वायर में डायरेक्शन भी है. बट जब भी हम करंट को एनालाइज करते हैं, मोर देन वन करंट को स्टडी करते हैं, we found that it always obey algebraic addition. करंट ने हमेशा algebraic addition को ओबे किया, हमेशा. मतलब हमें हमेशा आंसर क्या मिला? I1 plus I2, 2 plus 3, 5 ampere, whatever be the value. Done it? So that's why we take the current in which quantity? We take the current in a scalar quantity. तो छोटा सा पॉइंट था बट वेरी मच इंपॉर्टेंट, और फ्यूचर में कंफ्यूजन भी डाल सकता है. ओके, सो दिस इज बीन एवरीथिंग अबाउट द करंट. ये है हमारे करंट के बारे में. ओके, टिल देन. ओके, वेरी गुड. 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आंसर आया.
So till then, anything which makes doubt in your mind about the current or about the charge, अगर कोई issue है, please let me know now. Okay? Any issue? No, Sonakshi, very good, beta. Shabash. Done it, done it, done it. Chetan, na. Okay, done it. No, sir, no, sir. Okay, done. Shabash. Very good, very good, very good, beta. Very good, very good. Done it. It means you are very much attentive. It is very good to see you, yaar. Chaliye, chaliye. Okay. So here, till now, we discuss about these two things. हमने अब तक यहाँ तक की बातें कर ली हैं. Now let's proceed to the next thing, and next thing is potential difference. चलिए. Okay, I know today's lecture is being found as the same जो recorded lecture था, but एक बार उसे दोबारा से recall कर लेते हैं, and in this manner we will work on it daily. अब हम mostly हम कोशिश करेंगे कि हम majority time इस पे काम करें. So potential difference, it is defined as work done per unit charge. ये मैं आपको already define कर चुका हूँ. Okay, it is defined as amount of work done per unit charge to move a charge. This is our source charge, and I also defined this surrounding area is called as electric field. Okay, one of the candidate has been asked, sir, what is the formula for the electric field? What is the SI unit? So I am again repeating, I am going to make a separate lecture based on the electricity. I do not want to indulge here, so you will get confused. So उसके लिए मैं आपको एक separate बनाऊंगा. तो but overall it is been the range जिसमें आपको electrical character experience होगा. So initially my charge is out of electric field. ये कहाँ है? Electric field के बाहर है. Now I want to bring my charge from out of the electric field to a point within the electric field. So definitely to bring the charge from out of the electric field to the within the electric field, I have to do some work. मुझे कुछ work करना पड़ेगा. So how much amount of work done per unit charge? This is called as the potential difference. Clear है? Okay. This is called as mostly probably आप इसे potential का भी नाम देते हैं हम लोग इसे. Okay, but when we talk about the potential difference, it means we are specific about the 2 points. तो ये तो हो गया हमारा potential. जब आप कहां से कहां लेके आए? बाहर से अंदर. Now, if I want to take my charge inside, अंदर ही हैं आप. अब आप अपने चार्ज को A से B लेके जाना चाहते हो. कहां से कहां? A to B. You have to again do the work. So that work is called as potential difference. Okay, so this is called as potential difference. Mathematically, जैसे आप देख पा रहे हैं, mathematically both have the same formula, but definition wise there is a slight difference between them. Potential, it is the amount of work done from out to inside. बाहर से अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, this is called potential. Potential difference from one point to another point. किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा, बट बोथ द पॉइंट्स आर इनसाइड. ओके, बाहर से अंदर नहीं जाना है और अंदर से बाहर नहीं जाना है. पोटेंशियल डिफरेंस में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन स्पेसिफिक पॉइंट टू द अनदर स्पेसिफिक पॉइंट. Okay, mathematical wise both are same, so there is no worry while doing the numerical. If we want to talk about the SI unit, SI unit is what? SI unit is joule per coulomb. Work done is joule and charge is coulomb, and we also define as a volt. Okay, whose symbol is capital V. So this is the only one point. एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा बेटा जी. This is the only one point where the symbol for the physical quantity is V, और उस symbol का जो SI unit होगा उसका भी symbol capital V. तो आप confuse नहीं होना. तो हम ऐसे लिखेंगे. How we are going to write? We are going to write in this manner, that potential difference V is equal to 10 volt. We will write in this manner. V is equal to 10 V. This is the V, potential difference, and this V represents volt. Am I clear?
Okay, so this is about the potential difference. Now everyone, okay, now the important thing for which we are making that everything, वो important चीज जिसके लिए हम लोग अब तक सारा चीज क्रिएट कर रहे थे, हमने चार्ज को क्रिएट किया, हमने करंट को सेटअप किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को सेटअप किया. We are working for the heart of this chapter, which is Ohm's law. This is the heart of this chapter, main important. What does this law says? This law says that the current flowing through conductor is, the current flowing through conductor is directly proportional to, it is being directly proportional to potential difference provided across the conductor, across the conductor. So if we have conductor, let's suppose we have a conductor name as AB having some length L and the cross section area is capital A. Okay, let us change the name of the conductor. Let us this name as a PB. Okay, because A is the area. So A represent area of that cross section. ये वो area है. If I make a 3D view, this is the section जिसमें से आपके इलेक्ट्रॉन एंट्री करने वाले हैं. Okay, imagine that. Imagine that our electron are moving from the point B and they are try to exit from the point P. ये हमारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन है. So our current will be set up opposite to the direction of electron. ठीक है, तो हमारा करंट का डायरेक्शन कहां से कहां हो गया, P to B across the length L and the area A. Okay, so across these two end we provided the potential difference. हमने क्या प्रोवाइड कर दिया इनके अक्रॉस, we provided potential difference. This potential difference capital V, this will force our electron, ये हमारे इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा to move from one side to another side, from B to P की तरफ मूव करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करेगा सबको. And when they move in a particular direction, a current is set up. And that current direction is always being found opposite to the direction of electron, क्योंकि उसमें negative behavior है. ठीक है, okay, imagine that for example अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई पॉजिटिव एंटिटी मूव कर रही होती, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, if any positive entity is moving, कोई पॉजिटिव पार्टिकल होता है, वैसे प्रोटॉन होता है हम सब जानते हैं, और प्रोटॉन को हम रिलीज नहीं करवा सकते क्योंकि न्यूक्लियस है. बट फॉर एग्जांपल बाकी सारे हडल को साइड में रखते हुए एक मोमेंट के लिए मान लेते हैं कि प्रोटॉन या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बी से ए जा रहा है, बी से पी जा रहा है, माय मिस्टेक. ओके, सो हमारे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बी से पी. So the direction of current is always from along positive charge particle direction. करंट हमेशा पॉजिटिव की फ्लो की साइड चलता है, तो नेगेटिव के तो अपोजिट चलेगा ना, क्योंकि उसके अपोजिट कैरेक्टर में जा रहा है. अगर इलेक्ट्रॉन बी से पी जा रहा है तो करंट पी से बी जाएगा. ओके, सो व्हाट डज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सेज दैट कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे उसके अक्रॉस करंट भी उतना ही ज्यादा होगा. More you provide the voltage, more be the current in the circuit. But हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की. Okay, we are talking about the conductor, not about the any other type of material. वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे कि सेमीकंडक्टर भी होता है, तो I will take that later on. So for conductor, V is directly proportional to I. More be the voltage, more be the current. But there is a condition. Condition: temperature must be constant. टेम्परेचर सेम होना चाहिए. ओके, नंबर 2, मटेरियल शुड बी सेम. मटेरियल क्या होना चाहिए बेटा, मटेरियल सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप कॉपर के लिए स्टडी कर रहे हैं एंड आफ्टर सम टाइम
आप लोगों ने कॉपर को साइड में रखते हुए आप लोग एल्युमिनियम को स्टडी करने लग गए या आयरन को. सो देयर मस्ट बी नो चेंज इन द मटेरियल. मटेरियल मस्ट बी सेम एंड देयर मस्ट बी नो चेंज इन टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर और मटेरियल दोनों सेम रहते हैं, then V is directly proportional to I. And when this proportionality sign removes, a constant comes. And we call that constant as a resistance, जिसके बारे में हम लोगों ने रिकॉर्डेड में बात की है, बट फ्यूचर अपकमिंग लेक्चर्स में भी हम लोग इसके बारे में डिटेल्ड वर्जन में बात करेंगे. ओके, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बुलाते हैं? रेजिस्टेंस. सो वी गॉट अ वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? V is equal to I into R, or you can say R into I. Am I clear to that? और if this thing is been clear, अगर बेटा जी ये वाली बात अगर आपको क्लियर है, तो now we can work on what? We can work on graph. अब मैं आपसे ग्राफ के बारे में बात करना चाहूंगा, and graph of V versus I. Important graph. This has been asked various times in the board examination and various times in the NTSC also. Okay, so V is equal to R into I. This is the na. Okay, so how the V relate with the I? Directly. And whenever the V is relate with the I directly, I want everyone's focus on this. ये आज एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं बेटा जी मैं आप लोगों को, एंड दैट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. इसे साइड में रख के पहले इसके बारे में बात करते हैं. ओके, whenever our graph is straight line, so this obeys an equation, and that equation is y is equal to mx plus c. ध्यान से देखेंगे, where y represent y axis, x represent x axis, this m represent slope. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप. इन हिंदी यू कैन ऑल्सो कॉल दैट एज अ ढलान. ठीक है. एंड सी रिप्रेजेंट इंटरसेप्ट. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट का मतलब है कि ग्राफ वाई एक्सिस में कहां से शुरू होगा? वाई एक्सिस स्टार्ट पॉइंट. तो इंटरसेप्ट हमें क्या बताता है? इंटरसेप्ट हमें वाई एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है. ठीक है. तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे होगा, जैसे अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें, इट विल गो स्ट्रेट. M स्टैंड्स फॉर स्लोप, जो कि कांस्टेंट है, यानी हमारे इसकी ढलान हमेशा सेम रहेगी. और इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस स्टार्टिंग पॉइंट. y एक्सिस में कहां से स्टार्ट करना है? C से. पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव C से. इसका मतलब हमें कुछ ओरिजिन से प्लस C से शुरू करना पड़ेगा. ठीक है. अब मैं आपको अच्छे से एक बार इसमें समझाता हूं. अब आप आते हैं हमारे वाले ग्राफ पे. V इज इक्वल टू आर है, तो V I के साथ कैसे है? डायरेक्टली. मतलब ग्राफ स्ट्रेट जाएगा, मतलब V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब ग्राफ विल गो लीनियर. और इफ वी कंपेयर विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, ट्राई टू कंपेयर एवरीवन. y एक्सिस पे क्या लेना है? वोल्टेज. लो सर, we have taken the voltage on y-axis. On x-axis we will take current. x-axis पे क्या लेंगे बेटा जी? On the x-axis we will take current. So if you compare both the equations, y पे आपने वोल्टेज ले लिया, x पे आपने करंट ले लिया, तो आपके लिए स्लोप का काम कौन कर रहा है? Who works as the slope? The resistance will work as a slope, जो कि कांस्टेंट होता है. तो इसका मतलब हमारा ग्राफ स्ट्रेट चलेगा. पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज द इंटरसेप्ट? आपको प्लस में क्या दिख रहा है यहां पे? इज देयर एनीथिंग दैट यू आर लुकिंग इन द प्लस? नथिंग. इट मींस इंटरसेप्ट कितना है? 0 है. इंटरसेप्ट 0 का मतलब y एक्सिस स्टार्ट पॉइंट. y एक्सिस कहां से स्टार्ट होगा? y एक्सिस स्टार्टिंग पॉइंट कहां से? 0 से. और y का 0 ओरिजिन पे ही होता है. इसका मतलब ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड विल गो इन अ स्ट्रेट लाइन. और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें रेजिस्टेंस देगा. सो द स्लोप ऑफ V वर्सेस I, V वर्सेस I, y एक्सिस पे वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, x एक्सिस पे करंट होना चाहिए. डन है. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ V वर्सेस I. और यहां से हमने ग्राफ के स्लोप के बारे में पूछा.
इसका मतलब V वर्सेस I का स्लोप क्या बताएगा? रेजिस्टेंस बताएगा। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करें, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ओके, चेक दिस आउट। लेट्स सपोज वी हैव V versus I for two different materials, material A and material B. For two different material we have voltage versus current graph. Okay, so question is simple, which one has greater resistance? इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे राइट करके बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बेटा। ए, you are getting the right answer. Very good, correct. So which one have the greater? A will have the greater resistance. What you give the reason? If someone asks you, how you are going to explain? Sir, A has a greater resistance than B. Why? Because A has greater slope. A का जो slope है वो B से ज्यादा है, और V versus I का जो स्लोप होता है वो हमें किसकी वैल्यू देता है? वो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। डन है? ओके ओके, डन। सो वेरी गुड वेरी गुड, आई गॉट वेरी मच आंसर, मुझे बहुत ज्यादा आंसर मिल गए। ओके, सो अप टू हियर टुडे व्हाट we discuss about again charge, we discuss about most important thing, we discuss about quantization. Okay, then we discuss about the current, potential difference, and I try to again explain the Ohm's law with the graph, with the formula and everything. Okay, so now we have very much things which we are going to connect and we are going to study in the next lecture.